چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جی ہاں، جس کا انتظار تھا وہ سلسلے کا آج سے اللہ کی رحمت سے آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارے دلوں میں علم کا نور بڑھاتا جائے گا۔ سلسلہ کیسے چلنا ہے، انعامات کیا ہوں گے، ٹیمز کون سی ہیں، راؤنڈ کون سے ہیں، آج آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ مشورہ دوں گا، پہلا ہی سلسلہ ہے، اپنی ایک ڈائری بنا لیجئے، ایک رجسٹر بنا لیجئے، آپ کے پاس قلم بھی ہو اور کوئی کتاب بھی ہو۔ روزانہ ہی سلسلے میں انشاءاللہ ڈھیروں دینی معلومات اور حیرت انگیز معلومات آپ کو ملنی ہیں۔ تو اگر آپ لکھتے چلے جائیں گے، سلسلہ ختم ہوگا، آپ کے پاس علم دین کا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں آپ سے بھی سوال ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوال ہوتے ہیں، یہاں موجود حاضرین سے بھی سوال ہوتے ہیں، اور بڑے پیارے پیارے آپ کے لیے تحائف ہم نے تیار کیے ہیں۔ جی ہاں، انشاءاللہ جہاں بہت خوبصورت کتابیں آپ کو تحفے میں دی جائیں گی، وہاں آپ کے لیے حرمین طیبین کے بہت ہی خوبصورت نہایت ہی متبرک تبرکات بھی آپ کے لیے موجود ہیں۔ تو سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، چونکہ آج پہلا سلسلہ ہے اور سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، سیزن 8 کی ابتدا کر رہے ہیں، تو یقیناً ابتدا اللہ کے پاک کلام سے ہی ہونی چاہیے۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ انشاءاللہ ہمارے امام صاحب تشریف لائیں گے اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں امام صاحب۔ آج تلاوت قرآن مجید سے سلسلے کا آغاز فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء
تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سورہ رحمان کی مبارک آیتوں سے ہمارے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کا افتتاح ہو چکا ہے، ابتدا ہو چکی ہے، اور اب کیوں نہ اس مبارک قصیدے کے چند اشعار پڑھے جائیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں سب مل کر ان اشعار میں شامل ہو جائیں. بڑا مبارک قصیدہ ہے. شاعر کلام لکھ کر تمنا کرتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں، مگر وہ قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے بارگاہ رسالت میں مقبول شدہ یہ قصیدہ ہے. دنیا بھر میں عاشقان رسول بہت ذوق سے پڑھتے ہیں. مل کر انشاءاللہ قصیدہ بردہ کے چند اشعار. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 شروع ہو چکا ہے. ہر منگل، بدھ اور جمعرات ہفتے میں 3 دن انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوا کرے گا. اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ سلسلہ کم و بیش 2.25 مہینے جاری رہے گا. 9 اپریل کو انشاءاللہ
इस सिलसिले का फाइनल होगा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए अब मैं अपने यूं समझिए कि इस पूरे सिलसिले को हम जो लेकर चलेंगे हमारे साथ, दो बड़े ही प्यारे इस्लामी भाई जो हमारे मुआविन के तौर पर मेरे साथ इस सिलसिले में हुआ करेंगे, बारी बारी भी कभी कभी तशरीफ लाएंगे, एक साथ भी हुआ करेंगे। मेरी मुराद हमारे यूसुफ सलीम भाई हैं और हम सबके हर दिल अजीज आबिद बापू हैं। गुजारिश है कि तशरीफ लाइए और इनसे भी इंशाल्लाह बरकतें लेंगे। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप आराम से माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, आइए तशरीफ लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो माशाअल्लाह। बापू कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह खुश रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। काफी इंतजार था इस सिलसिले का, दुनिया भर में जहां जाने का मौका मिलता था अमूमन इस्लामी भाई इसके बारे में जरूर सवालात करते थे। जी, माइक अपना करीब करेंगे आप इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी बहुत सारे मैसेजेस मदनी चैनल पर, कॉल्स का तांता, ईमेल बंदी रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। साल में एक बार करते हैं सिलसिला ताकि अच्छे अंदाज से तमाम मदनी चैनल के नाजरीन हमारे साथ शामिल हो सकें। आबिद बापू भी हमारे साथ हैं, बापू की भी बरकतें लेंगे। बापू क्या फरमाएंगे? एक बार फिर ज़हनी आजमाइश में आपका साथ रहेगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि यूसुफ भाई भी बता रहे हैं और काफ़ी लोग इस्लामी भाई इस सिलसिले का इंतजार था। आज मैं मस्जिद में जब नमाज पढ़ के हम आ रहे थे बाहर की जानिब, तो एक इस्लामी भाई मिले। तो जब वो आ रहे थे ना, तो मेरे जहन में ये बात है, मैं यार ये ज़हनी आजमाइश की बात करेंगे। तो ये कि जब वो करीब आए तो सलाम किया, बोले सिलसिला कितने बजे शुरू होगा? तो मैं यार सबको इंतजार है, ऐसा महसूस हो रहा है कि तकरीबन जो इस सिलसिले में एक मरतबा आ जाता है फिर उस सिलसिले का ही होके रह जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म दीन फैलाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। मैं सिलसिले के शुरू में भी कह चुका हूँ। आइए यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लें और मदनी चैनल के नाजरीन भी नीयत कर लें कि इस सिलसिले को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना। एक तो उतना दिलचस्पी है, बड़ा अच्छा मुकाबला है, बड़ा अच्छा मंच है, नहीं, बल्कि हमारी जो है वो यूँ समझिए कि ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम इल्म दीन सीखें, हम इल्म दीन को हासिल करें और रोज़ाना बहुत सारा इल्म दीन सीखेंगे तो सिलसिले में देखने का भी सवाब मिलेगा, शिरकत का भी सवाब मिलेगा। अच्छा, यहाँ जो मौजूद इस्लामी भाई हैं उनके लिए एक हिदायत है और मदनी चैनल के बहुत सारे नाजरीन भी चाहते होंगे कि हम भी यहाँ शिरकत कर सकें। अभी हमारा जो स्टूडियो है वो फुल हो चुका है, तो नीचे इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना के अंदर हमने स्क्रीन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि जो बाद में नाजरीन आए, हाजरीन आए, तो वो स्क्रीन का इंतज़ाम हो चुका है, तो वो नीचे वहाँ बैठेंगे। लेकिन जो अगर स्टूडियो में आना चाहते हैं तो कल से एक टोकन सिस्टम होगा। हम 9 बजे रात को टोकन वो तकसीम कर देंगे। उसके बाद जो आने वाले होंगे शायद उनको जगह नहीं मिल पाए। और इनके दरमियान भी तोहफे वगैरह का बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इनके दरमियान भी होगा। और जो स्टूडियो में नहीं भी बैठ सकेंगे, नीचे बैठेंगे, उनको भी तहाइफ दिए जाएंगे, किसी को महरूम नहीं किया जाएगा। सवाल जवाब यहाँ मौजूद हाजरीन से भी होंगे। तो इंशाल्लाह सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। एक बहुत खूबसूरत कलाम इस सिलसिले के लिए रिकॉर्ड किया गया, दुनिया भर के नाजरीन ने बहुत पसंद किया, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो क्यों ना उस कलाम को आज यहां मिलकर पढ़ा जाए और मिलकर सुना जाए। आइए, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश का वो कलाम इल्म नूर है, इंशाअल्लाह एक बार फिर मिलकर सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल बंदे के दिल में डाल देता है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म और इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है। समा है जीत का हंसी, शिकस्त भी ज़िशान है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। हो रास्ता
بہشت کا سہل چلو اگر یہاں ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں ہو راستہ علم کا کہ ایسا راستہ سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر، سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر، ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے پوچھا، جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے، جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ غذا دوا شفا ہے دل مریض لے اسے، غذا دوا شفا ہے دل مریض لے اسے، رہا جو دور 3 دن تو زندگی سے دور ہے۔ تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، رہے جنا کا ہے نشان دلائے یہ بلندیاں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سلسلہ آپ کے سامنے شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے منچ کی طرف چلیں اور ہماری ٹیمز کو بلائیں، میں ایک اور کردار ہمارے سلسلے کا، بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، بہت سالوں سے اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیتے رہے، اور بالخصوص جو تبرکات ہیں اس کا سارا نظام سب سنبھالنا ہمارے یوسف باپو، ماشاءاللہ۔ یوسف باپو سے عرض کریں گے ہمارا اتنا پیارا کلام ہمارے نعت خوانوں نے پڑھا ہے تو ان کو کوئی تحفہ دے کر آج کے سلسلے کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تحائف ان نعت خوانوں کے لیے ہمارے یوسف باپو نے تیار کیے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کریں گے۔ آپ کا شکریہ انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ جی باپو کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے کن کن کو یہ تحائف چاہیے؟ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار ہو جائیں، جوابات پر آپ کو بھی ملیں گے اور انشاءاللہ ہمارے بہت سارے ناظرین کے گھر تک بھی پہنچیں گے ماشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات میں جب تک تحائف آ رہے ہیں، ایک نئی چیز ہم نے شروع کی ہے، سیزن 8 کا ایک نیا تحفہ ہے کہ ہم جہاں ان دونوں ٹیمز میں سے ایک ٹیم یقیناً مقابلے میں آگے جائے گی، لیکن روزانہ ہی ایک یوں سمجھیے انعام ہم نے نیا اناؤنس کیا ہے، اور وہ ہے فیضان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ انعام یہ ہوگا کہ ان 6 اسلامی بھائیوں میں سے جس ایک اسلامی بھائی کی کارکردگی سب سے زیادہ اچھی ہوگی، انشاءاللہ اس کو ایک خوبصورت انعام دیا جائے گا۔ اس سلسلے کا یوں سمجھ لیجئے وہ بہترین اسلامی بھائی ہوگا، اور جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ، پورے 31 سلسلے ہیں فائنل تک، 31 ایپیسوڈز ہوں گے انشاءاللہ، تو ان 31 ایپیسوڈ میں جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ انعام حاصل کیا ہوگا، انشاءاللہ ان اسلامی بھائی کو فیضان مصطفیٰ انعام یعنی مدینہ منورہ کا ٹکٹ فائنل میں پیش کیا جائے گا۔ تو ایک اکیلے اسلامی بھائی کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ پورے سلسلے میں بہترین جواب دے کر، اچھا یہ فیضان ابو ہریرہ کیوں انعام رکھا گیا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، تھوڑی دیر بعد وہ بتاؤں گا۔ جی باپو آئیے ماشاءاللہ۔ اس میں ہے کیا مدنی تحفہ؟ ہاں یہ تحفہ ایسا ہے جو قبر میں ساتھ لے جانے والا، جب تک زندہ رہیں اپنے گھر میں سجائے رکھیں، جاتے جاتے قبر میں لے جائیں۔ سب سے پہلے تو جنید بھائی کو دینا چاہیے، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جنید بھائی ہمارا بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، امام صاحب ہمارے اس بار سلسلے میں نہیں ہے لیکن ہم ان کو بلاتے رہیں گے انشاءاللہ نعت پڑھنے کے لیے، کلام پڑھنے کے لیے۔ عدنان بھائی ماشاءاللہ
अदनान मदनी भाई माशाल्लाह जी, हमारे आदिल भाई सुभान अल्लाह जी। अदनान शेख भाई तशरीफ नहीं ला सके, उनकी गालिबन बच्चे की तबीयत खराब है, दुआ भी कर दें अल्लाह ताला उनके साहबजादे को शिफाए कामिला अता फरमाए। तो हम आबिद बापू को उनका इनाम दे देते हैं, बापू को इनाम बाद में देंगे इंशाल्लाह। बापू और यूसुफ भाई तो बांटने वालों में से ना, ये आपका नहीं है अदनान भाई का। आपने बताया कि एक से ज्यादा जो ये हासिल करेंगे उन्हें फैजाने मुस्तफ़ा को जी, तो एक से ज्यादा भी हासिल कर सकते हैं। जी जी, हर सिलसिले में 31 ये इनाम है हमारे पास, 31 शील्ड्स होंगी, हर सिलसिले में एक दी जाएगी और ये कैलकुलेट किया जाएगा। हो सकता है कोई टीम फाइनल तक ना पहुंचे, लेकिन उसकी टीम का कोई एक इस्लामी भाई ऐसा हो जिसने फैजान अबू हुरैरा सबसे ज्यादा लिए हों, तो इंशाअल्लाह उनको अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक के दर की हाजिरी का तोहफा पेश किया जाएगा, टिकट पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी अपनी जगह पर सारे इस्लाम में चलेंगे। सल्लू अलल हबीब। चलिए, मैं दोनों टीम से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ लाएं। सिलसिले का आगाज करते हैं। आज मुकाबला है बाबुल मदीना कराची और गुजरात के दरमियान। जी, पंजाब का एक मशहूर शहर और बाबुल मदीना कराची मक्की। बाबुल मदीना कराची की दो टीम्स हैं, इसलिए हमने मक्की और मदनी टीम्स रखी हैं। और इब्तिदा है मेज़बान शहर से। जी हाँ, बाबुल मदीना कराची के आलमी मदनी मरकज़ में सिलसिला हो रहा है और बाबुल मदीना कराची की टीम से ही यूँ समझिए कि सिलसिले का आगाज़ है। गुजरात पंजाब का बड़ा मशहूर शहर, ये दोनों टीम्स कैसी तैयारी करके आई हैं, कौन इस्लामी भाई आए हैं, किस शोबे से इनका ताल्लुक है, ये सब कुछ इनसे सुनना है। और आज कुछ आपको बाबुल मदीना कराची के बारे में भी बताएंगे। एक हमने डॉक्यूमेंट्री दोनों शहरों के लिए बनाई है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इससे पहले कि हम मज़ीद सिलसिले को आगे लेकर चलें, ये बताता रहूं कि इस वक्त हमारे जो मदरी चैनल का फेसबुक पेज है उस पर ये सिलसिला लाइव भी देखा जा सकता है। मदरी चैनल लाइव जो पेज है, और जो मदरी चैनल का नॉर्मल नाम से जो पेज है वहां पर एक वोटिंग हो रही है। इस वक्त आपका यूँ समझे राय ली जा रही है कि कौन सी टीम आज जीतेगी, बाबुल मदीना या गुजरात। अपनी अपनी राय जाकर आप उस पेज पर दे दीजिए। सिलसिले का जब इख्तिताम होगा पहले हम ये बताएंगे कि कौन सी टीम को राय ज़्यादा मिली है, और फिर देखेंगे कि वो राय के मुताबिक नतीजा आया है या उससे अलग। क्यों ना यहाँ पर भी हम थोड़ा सा तय पूछें ज़रा ना, तो आप बाबुल मदीना आज का मुकाबला जीत जाएगी, कौन कौन कहते हैं? चलें जनाब, बाबुल मदीना में सिलसिला हो रहा है तो ज़्यादा वोट बाबुल मदीना के। लेकिन एक गुजारिश करूंगा, देखिए गुजरात वाले हमारे मेहमान हैं, तो अब दाईं तरफ वाले, गुजरात वाले यहां बैठे ना, ठीक है, दाईं तरफ वाले गुजरात वाले हो जाएं, ठीक है, बाईं तरफ वाले बाबुल मदीना वाले हो जाएं। तो सही जवाब पर जोर से क्या कहेंगे? तो अब देखते हैं कि मुकाबला जरा मजबूत होगा। चलते हैं अब, हमें बताया जाए कि ये मुकाबला कैसे आगे चलेगा। पहले मदनी चैनल के नाजरीन को बताते हैं कि टीम्स कितनी हैं, ये सिलसिला होगा कैसे। ज़ैनी आजमाइश सीजन 8 में डबल 12 टीम है, 24 टीम्स हैं और उसमें हमने 2 ग्रुप बनाए हैं। जरा हमें ग्रुप मक्की और ग्रुप मदनी की मालूमात दीजिए स्क्रीन पर, तमाम मदनी चैनल के नाजरीन देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा। जी दिखाइएगा जरा स्क्रीन पर। जी आपको बताते हैं कि किस किस शहर से इस्लामी भाइयों ने आना है। इस बार बहुत सारे नए शहर शामिल हुए हैं हमारे सीजन 8 के अंदर। उन शहरों के इस्लामी भाई भी हमारे पास आएंगे जो इससे पहले ज़ैनी आजमाइश में नहीं आए। हमें बहुत सारे शहरों से गुजारिश आई थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में तो सैकड़ों शहर हैं, लेकिन एक लिमिटेड ही सिटीज़ सेलेक्ट की जा सकती हैं। और आज के बताएंगे आपको कि ग्रुप मक्की में और ग्रुप मदनी में, याद रहे कि 12-12 टीमें हैं। ग्रुप मक्की में 12 शहरों की टीमें हैं और ग्रुप मदनी में 12 टीम्स हैं। इन 12 टीमों में यानी पहले ग्रुप मक्की के मुकाबले होते रहेंगे और मक्की में जो टीम है 12 में से 8 टीमें सेलेक्ट हो जाएंगी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। 4 टीम्स जो हैं हमसे जुदा हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह ग्रुप मदनी में जो 12 टीमें हैं 12 में से 4 टीमें हमसे जुदा होंगी और 8 टीम सेलेक्ट होंगी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। अब कितनी टीमें बच गई? 8 और 8 16 टीम्स। जी 16 टीम्स के दरमियान मुकाबले शुरू होंगे प्री क्वार्टर फाइनल और ये नॉकआउट मुकाबले होंगे। हर मुकाबले के बाद एक टीम ने घर जाना होगा और एक टीम एक कदम आगे बढ़ जाएगी। 16 में से 8 टीमें सेलेक्ट होंगी क्वार्टर फाइनल के लिए, 8 में से 4 सेलेक्ट होंगी सेमीफाइनल के लिए और 4 में से 2 सेलेक्ट होंगी फाइनल के लिए। और 9 अप्रैल को फैसला होगा कि ज़ैनी आजमाइश सीजन 8 का विनर कौन है और किसे इनाम दिया जाता है। याद रहे कि इस बार जीतने वालों को फी इस्लामी भाई 50-50
50,000 रुपए के मदनी चेक दिए जाएंगे और अब वो चाहें तो उन चेक्स के जरिए किताबें परचेज कर लें और चाहें तो मदीने शरीफ की हाजिरी की तैयारी करें। लेकिन ये मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मुझे उम्मीद है कि इनामात का रंग भी बदलता जाएगा और इंशाअल्लाह सिलसिले का रंग भी बदलता जाएगा। जी दिखाएंगे हमें तैयारी अगर हो तो कि कौन कौन सी टीम्स, जरा दिखाइएगा मक्की ग्रुप में कौन सी टीम्स हैं। जी मक्की ग्रुप में मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये बाबुल मदीना कराची, जरा स्लो इसको रोक दीजिएगा। बाबुल मदीना कराची, मक्की, गुजरात, मरकजुल औलिया लाहौर, सखर, कोयटा, सरदाराबाद, गिलगित, जी बहुत दूर से टीम आ रही है इस बार, ओकाड़ा, मदीनतुल औलिया मुल्तान, नवाबशाह, सुई बलोचिस्तान और साहेवाल। आप देख रहे होंगे कि किस तारीख को किसका किसके साथ मुकाबला है। और यहां एक और बड़ी अहम बात बतानी है कि जब ये यानी जितनी टीमें आ रही हैं आज बाबुल मदीना और गुजरात के इस्लामी भाई हैं, हारने के बाद भी एक मौका मिलेगा हर टीम को, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, एक मौका हर टीम को मिलेगा, 2 मुकाबले का मौका मिलेगा और उसके बाद अगर दोनों में वो हार गए तो फिर हम उन्हें तहाइफ देकर रुखसत करेंगे। ज़हनी आजमाइश से कोई खाली हाथ नहीं जाता, पीछे रहकर भी तबरुकात और तहाइफ लेकर ही घर जाता है। हम अपने मेहमानों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आइए सिलसिले का आगाज करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, अगली ग्रुप मक्की को देख लिया, हम ग्रुप मदनी भी दिखा दें भाई जनाब, और कौन कौन सी टीमें हैं। जी जनाब, यहां बाबुल मदीना मदनी, गुलजारे तैयबा, रहमताबाद, एबटाबाद, मीरपुर खास, जमजम नगर हैदराबाद, रहीम यार खान, गुजरांवाला बमुकाबला घोटकी, इस्लामाबाद और उसका मुकाबला है बैन अल अक़वामी। जी हां, बैन अल अक़वामी से मुराद पाकिस्तान के बाहर के कुछ इस्लामी भाई भी आए हुए हैं। कश्मीर का मुकाबला होगा डेरा अल्लाह यार से। ये 12 टीमें हैं हमारे ग्रुप मदनी में, तो गोया पाकिस्तान के कोने कोने से आशिकान रसूल आएंगे इस मंच पर और देखना यह है कि इस जहनी आजमाइश में वो कैसे पूरा उतरते हैं। जी अब शुरू करते हैं आज का मुकाबला। मदनी चैनल के नाजरीन से पहला सवाल, आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाया जाएगा। दुनिया भर में जहां कहीं हैं, नंबर अपने मोबाइल में ऐसा कीजिए, सेव कर लीजिए, रोजाना ही तो जवाब देना है आपने, तो आप नंबर सेव कर लीजिए ताकि आप जब मैसेज करें तो नंबर पहले से सेव हो। सवाल क्या है आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन अपनी स्क्रीन पर आज का सवाल देखेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन से सहाबी थे, वो कौन से सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो इल्म दीन की नूरानी मजलिस सजाते हुए इल्म के तलबगारों को शरई मसाइल बताते और कुरान पाक सही तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना सिखाते थे। सहाबी रसूल होकर कुरान पाक को दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना सिखाते थे। हम सब इस्लामी भाइयों के लिए कितना बड़ा दर्स है कि हमें मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करनी चाहिए, सहाबा का तरीका है। अब आते हैं कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा। वो सहाबी का नाम, सहाबा तो बहुत सारे हैं। एक आपको मदनी चैनल के नाजरीन को एक हिंट दे देता हूं, एक इशारा दे देता हूं, और वो इशारा यह है कि जनवरी का माहनामा फैज़ान मदीना, जी हां, दावत इस्लामी ने जनवरी से जो खूबसूरत माहनामा हमें अता फरमाया है, तो अभी इस महीने का तो आने वाला है, आ चुका है, कल परसों आपको मिल भी जाएगा, लेकिन जनवरी का जो माहनामा है उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लें। जिन खुशनसीबों ने वो माहनामा अपने घर में बुक करवा लिया है तो ज़रा खोलिए, उसमें ये नाम मौजूद है सहाबी का। तो आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। सही जवाब देने वालों को भी इंशाअल्लाह मुबारक तबरुकात उनके घर के एड्रेस तक, इंशाअल्लाह घर के दरवाजे तक अल्लाह ने चाहा तो पहुंचाए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब तारुफ हासिल करते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारे गुजरात वालों से, ज़ाहिर मेहमान हैं हमारे, तो पहले गुजरात के इस्लामी भाइयों से अपनी बारी बारी अपना अपना नाम बताएंगे और किस शोबे से ताल्लुक़ है ये भी बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अत्तारी है और मैं शोबा तालीम से जो है रिलेट हूँ, माशाअल्लाह, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है। जी शहर मशहूर शाहरा जीटी रोड पर वाक़ है। इस जिले के जुनूब से दरिया चनाब और शुमाल से दरिया जेहलम गुजरता है। ये शहर सैकड़ों देहातों में घिरा हुआ है जहां से लोग काम काज के लिए शहर का रुख करते हैं। जिला गुजरात के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। ज्यादातर गंदुम, गन्ने और चावल की काश्त के लिए मौजू है। तारीखी बाकियात, कई तारीखी इमारतें और बकायात खंडरों की शक्ल में पाक नईमी काबीना गुजरात के आसपास मौजूद हैं।
पाक नईमी काबीना गुजरात बिजली के पंखों, फर्नीचर साजी, बर्तन साजी और जूतों की सनत में एक नाम रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाक नईमी काबीना गुजरात में तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का मदनी काम बहुत ही एहसन अंदाज में जारी है। मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी जिसको मस्जिद भरो तहरीक भी कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दावत इस्लामी के तहत 5 मकामात पर मदनी मराकिज़ कायम हैं, जहां कसीर इस्लामी भाई शिरकत फरमाते हैं। मदनी मुन्नों के मदरसों बनाम मदरसतुल मदीना की तादाद 12 है, जबकि मदनी मुन्नियों के मदारिस बनाम मदारिसुल मदीना लिल बनात की तादाद 3 है। मजीद इल्म दीन हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया जामियातुल मदीना भी है, जहां से इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आलिम और आलिमा का कोर्स कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाक नईमी काबीना गुजरात में दावत इस्लामी के तहत 4 जामियातुल मदीना कायम है, जहां सिर्फ इस्लामी भाई आलिम कोर्स की सादत पा रहे हैं। इसके अलावा 4 मकामात पर जामियातुल मदीना लिल बनात भी मौजूद हैं, जहां से कसीर इस्लामी बहनें आलमा कोर्सेज की सादत पा रही हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, दीन और दुनिया की तालीम को आम करने के लिए दावत इस्लामी का एक बहुत ही प्यारा शोबा बनाम दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम भी कायम है, जहां से कसीर मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने में मशगूल हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मत की खैर ख्वाही के जज्बे से सरशार आपकी दावत इस्लामी के तहत पाक नईमी काबीना गुजरात में 215 मकामात पर दरस फैजान सुन्नत की तरकीब होती है और 6 मकामात पर तावीज़ात अतारिया के बस्ते यानी स्टॉल भी लगाए जाते हैं। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए 2 मकामात पर मकतबतुल मदीना भी कायम है, जहां से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल रिसाले और किताबें तलब की जा सकती हैं। आप भी दावत इस्लामी के साथ शामिल होकर नेकी की दावत की धूम मचाने में शामिल हो जाएं। अल्लाह करीम पाक नईमी काबीना गुजरात समेत दुनिया भर में दावत इस्लामी का मदनी काम आम फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम पाकिस्तान के तमाम ही शहरों को हरा भरा रखे, खुशहाल रखे। और गुजरात से आए हुए आशिकान रसूल आज मौजूद हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि गुजरात के बहुत सारे आशिकान रसूल आज सिलसिले में शामिल होंगे। हमारी दुआ है कि वहाँ के रहने वाले आशिकान रसूल की रब खैर फरमाए और वहाँ दावत इस्लामी को भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बाबुल मदीना कराची दावत इस्लामी का मरकज़ भी यहीं है और पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। आइए बाबुल मदीना कराची के बारे में भी कुछ देखते और सुनते हैं। सिंध पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सूबा है जो बर्रे सगीर के कदीम तरीन तहजीबी विरसे और जदीद तरीन मुआशी और सनती सरगर्मियों का मरकज है। सिंध पाकिस्तान का जुनूब मशरकी हिस्सा है। सिंध की सूबाई जबान सिंधी और सूबाई दारुल हुकूमत कराची है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक़्तिसादी मरकज है। कराची दुनिया के चंद बड़े शहरों में से है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़े कदीम माहीगीरों की बस्तियों में से एक का नाम कोलाची जो गोट था। कराची की असल तारीख कोलाची जो गोट से शुरू होती है। समुंदर के किनारे आबाद इस गांव में कोलाची नामी कबीला आबाद था, जिसके बायस इसे कोलाची जो गोट का नाम दिया गया। बाद अज़ां इस नाम में वक्त के साथ तब्दीली आती गई, जिसके मुताबिक माई कोलाची से माई कलाची और फिर कराची हो गया। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियां दीगर शहरों से कबल शुरू हो गयीं। कराची शहर का रकबा कमोबेश 3530 मुरब्बा किलोमीटर और 1360 मुरब्बा मील है। कराची की आबादी इस वक्त गैर सरकारी और बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक 24 मिलियन है। इस शहर को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया बाबुल मदीना भी कहते हैं।
क्योंकि इसी शहर से इस खित्ते की परवाजें मदीना शरीफ की तरफ रवाना होती हैं। इसलिए इस शहर को बाबुल मदीना यानी मदीना शरीफ का दरवाजा कहा जाता है। शहर का कदीम एयरपोर्ट टर्मिनल अब हज परवाजों के लिए इस्तेमाल होता है और आपकी दावत इस्लामी के तहत यहाँ और दुनिया भर में हुज्जाज किराम और ज़ायरीन मदीना की तरबियत का सिलसिला किया जाता है। मदनी चैनल के नाजरीन, तबलीगी कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी, जो कि दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की इस्लाह के लिए मसरूफ अमल है। इस तहरीक का आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना भी बाबुल मदीना कराची में मौजूद है और दावत इस्लामी का आगाज भी इसी शहर से हुआ और इसी आलमी मदनी मरकज से दुनिया भर के लोग सौम सलात, सुन्नत व आदाब की खुशबू पा रहे हैं। तबलीगी कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी 102 से जायद शोबाजात में कुरान और सुन्नत का पैगाम आम कर रही है। बाबुल मदीना कराची में तबलीगी कुरान और सुन्नत का काम करने वाले 102 शोबाजात में से चंद शोबाजात की तफसील कुछ इस तरह से है। बाबुल मदीना कराची में दावत इस्लामी के तहत दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तादाद 5 है। बाबुल मदीना कराची में आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के साथ साथ दीगर 11 मकामात पर दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमात का सिलसिला होता है। तावीज़ात अत्तारिया बाबुल मदीना कराची में इस्लामी भाइयों के 120 मुकामात पर और इस्लामी बहनों के कसीर मुकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगाए जाते हैं, जिन पर माहाना मरीजों की तादाद 61,000 से जायद है, जिनको 70,000 से जायद फी सबीलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं। बाबुल मदीना कराची में जामियातुल मदीना लिल बनात यानी इस्लामी बहनों के जामियातुल मदीना की तादाद 41 है, जिसमें 3,391 इस्लामी बहनें फी सबीलिल्लाह आलिमा कोर्स करने की सआदत पा रही हैं। जामियातुल मदीना लिल बनीन यानी इस्लामी भाइयों के जामियातुल मदीना की तादाद 36 है, जिनमें 3,910 तुलबा फी सबीलिल्लाह आलिम कोर्स करने की सआदत पा रहे हैं। दारुल मदीना बाबुल मदीना कराची में दावत इस्लामी के तहत दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम का आगाज किया है, जिसकी 15 शाखें बाबुल मदीना कराची में मौजूद हैं, जिनमें 4,510 तुलबाए किराम और 458 मदनी अमला तालीम व ताल्लुम में मसरूफ हैं। खुद्दामुल मसाजिद मजलिस खुद्दामुल मसाजिद के तहत बाबुल मदीना कराची में कसीर मसाजिद की तामीर की जा चुकी है। मजीद 19 मसाजिद की तामीरात का काम जारी है। आइम्माए मसाजिद बेशुमार मसाजिद ऐसी हैं जिनके आइम्माओ मुअज्जिनीन और खादमीन के मुशाहिरे यानी तनख्वाहों का मस्जिद इंतजामिया खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं कर पाती, लिहाजा उन हजरात की खैर ख्वाही में तनख्वाहों की अदायगी का भी दावत इस्लामी की जानिब से सिलसिला है। इसके अलावा भी आपकी दावत इस्लामी के तहत हिफ्ज़ नाज़रा की तालीम आम करने के लिए मदारिसुल मदीना लिल बनीनो लिल बनात और मदरसतुल मदीना बालगान कसीर तादाद में मौजूद हैं। बित्तफसील मदरसतुल मदीना लिल बनीन की तादाद 407 और मदरसतुल मदीना लिल बनात की तादाद 231 और मदरसतुल मदीना बालिगान की तादाद तकरीबन 1100 है। इसके अलावा दावत इस्लामी के तहत 7 मकामात पर मकतबतुल मदीना कायम है और कसीर मकामात पर मकतबतुल मदीना के बस्ते यानी बुक स्टॉल लगाए जाते हैं। आए रोज कसीर तादाद में इस्लामी भाई 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन और 12-12 माह के मदनी काफिलों में सफर करते, मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला लेते और अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश फरमाते हैं। आप भी दावत इस्लामी से वाबस्ता होकर सुन्नतों की खिदमत में दावत इस्लामी का साथ दें। एक बार आप दावत इस्लामी के माहौल में आकर देखें, इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल आप खुद अपने दिल में राहत और खुशी पाएंगे। अल्लाह हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबुल मदीना कराची में है ही इतना कुछ कि उसको दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त लग जाता है। बहरहाल दोनों मुबारक शहर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात तो वो शहर है जिससे हमें यूं भी बड़ा प्यार है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार पुरअनवार भी वहाँ मौजूद है, मुफस्सिर कुरान हैं। चलते हैं मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब आज आपको ये बताते हैं कि आज के सिलसिले में जो सेगमेंट्स हैं किस किस राउंड पर और किस किस सेगमेंट पर मुकाबले होंगे। आइए देखते हैं स्क्रीन पर आज के मुकाबले का अंदाज। जी इल्म नूर है, इसके अंदर इंशाअल्लाह 10 सवाल होंगे, हर टीम से 10-10 सवालात होंगे और उसके हर सवाल के जवाब पर 2 नंबर दिए जाएंगे। इश्क के बोल, इसमें 5-5 सवालात होंगे। ये अशार हैं और ये अशार इन्हें तक मुकम्मल करने होंगे। तीसरा सेगमेंट ये न्यू सेगमेंट है, नया अंदाज है। ज़हनी आजमाइश की जो एप्लीकेशन है, अगर अभी तक मदनी चैनल के नाजरीन आपने डाउनलोड नहीं की तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप भी हमारे साथ इस मुकाबले में अपने घर में बैठकर शामिल हो सकेंगे। चौथे नंबर पर जो सेगमेंट होगा फैज़ान मिसवाक, और 5वां सेगमेंट बहुत खूबसूरत समझाइए मगर इशारों से, और छठा सेगमेंट होगा सफर है मगर अकेले। ये डिसाइडर होगा और इसके बाद पता चलेगा कि आज के मुकाबले में कौन आगे बढ़ जाते हैं, कौन पीछे रह जाते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। गुजरात से हम अपने इस सिलसिले का आगाज करते हैं। एक बात आपको बतानी है मदनी चैनल के नाजरीन, हमने ये क्यों आज हमारे सेगमेंट का नाम आज से रखा है फैज़ान अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अजीम सहाबी हैं, मगर उनके बारे में आता है कि आप खुद फरमाते हैं कि जब मैं कोई बात सुनता था नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो वो भूल जाया करता था, जहन में रहती नहीं थी। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हुजूर मैं आपके इरशादात सुनता हूं मगर याद नहीं रहते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी चादर को बिछाया। नबी पाक ने अपने दोनों हाथों से लप बनाकर, यानी अपनी मुट्ठी मुबारक को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चादर में डाल दिया। बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मेरे आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगाओ। मैंने वो चादर सीने से लगा ली। कहते हैं वो दिन है, उसके बाद मैं नबी पाक की कोई बात नहीं भूला, कोई इरशाद नहीं भूला। ऐसा हाफजा मजबूत हो गया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा की कसीर जमाअत में सबसे ज्यादा, ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आपको हदीसें याद थी और सबसे ज्यादा रिवायतें भी। जी हां, अहदीस की रिवायतें बहुत सारे सहाबा ने की, मगर वो रावी जिन्होंने 4,364 हदीसें रिवायत की, आपकी रिवायत शुदा हदीसें जो हैं वो हदीस की किताबों में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले हदीसों को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह ने ऐसा बाकमाल हाफजा दिया, कहते हैं जब से नबी पाक ने चादर में कुछ डाला है, उस चादर को सीने से लगाया है, वो दिन है, उसके बाद कोई बात नहीं भूला। तो हमने उन्हीं की निस्बत से आज से एक नया अवार्ड, एक नया इनाम इंशाअल्लाह हमने शुरू किया है, फैज़ान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। देखेंगे इन 6 इस्लामी भाइयों में से कौन से इस्लामी भाई वो इनाम लेकर अपने घर को जाते हैं। इल्म नूर है सेगमेंट शुरू करते हैं और गुजरात वालों से पहला सवाल करते हैं। जनाब आप तैयार हैं? 25 सेकंड आपके पास होंगे, आप बिल्कुल मशवरा करेंगे, लेकिन मशवरा करने के बाद जब एक बार जवाब दे देंगे उसके बाद उसे तब्दील नहीं कर सकेंगे। पहला सवाल, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुताबिक पानी पीने में हर सांस के बाद क्या पढ़ना चाहिए? माशाल्लाह हमारे सिलसिले में आपको मदनी चैनल के नाजरीन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पानी हम रोजाना ही पीते हैं, अब देखें हर सांस में क्या पढ़ना चाहिए, ये भी सीख लेते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करें और पहली सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और तीसरी सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ज़हनी आजमाइश सीजन 8 का पहला सवाल और उसका जवाब भी दुरुस्त दिया। मैं भी दोहरा लेता हूं, आप भी दोहरा लें। पानी तो रोज पीते हैं, ये तो हमें पता है ना कि 3 सांस में पानी पीना है, लेकिन जब पहला घूंट पिए पहले सांस के बाद क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जब दूसरा घूंट पिएंगे दूसरे सांस के बाद क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जब तीसरा घूंट पिएंगे उस सांस के बाद क्या कहेंगे?
الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. امام غزالی نے کتنا پیارا ہمیں وظیفہ بتا دیا ہے. میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں, آپ بھی عمل کی نیت کر لیں. چلیں جناب, سلسلہ بھی جاری ہے اور عمل کی نیتیں بھی جاری ہیں. پہلا سوال ہے باب المدینہ کراچی والوں سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا, اس سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کے تحت کہ برتن میں جو سانس لینا ہے بعض اوقات یہ زہریلا بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور پھونک جو ہے وہ برتن میں مار سکتے ہیں, جبکہ درود پاک یا بسم اللہ یا کوئی ذکر کر کے اگر پھونک ماریں گے تو یہ ویسے شفا ہوگا, اس کے علاوہ نہیں. جناب بڑی خوبصورت بات ہے کہ برتن میں کچھ لوگ چائے ٹھنڈی کرنے کے لیے پھونک مار رہے ہوتے ہیں, دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مار رہے ہوتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے, جانوروں کا کام لکھا گیا, بتایا گیا. اور اس میں سانس میں بعض اوقات جراثیم بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں, سائنس بھی آج یہ کہتی ہے. لیکن اگر دم کرنے کے لیے پھونک ماری جائے درود پاک پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے تو وہ ٹھیک ہے. اب جناب تو یہ جو ہے جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں, جواب درست ہے. تو اب آتے ہیں جناب ہم ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں کی طرف. اصحاب صفہ کو اصحاب صفہ کیوں کہتے ہیں؟ ہائے ہائے, اللہ کریم وہ مبارک مقام ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے جس کو اصحاب صفہ کی جگہ کہتے ہیں. اصحاب صفہ کو اصحاب صفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا, سایہ دار جگہ تھی, جہاں پہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے. اس وجہ سے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. چبوترا کہتے ہیں صفہ کو. چبوترے کے پاس وہ اس جگہ پر بیٹھنے والے صحابہ اصحاب صفہ کہلاتے. اور یہ بڑے مسکین صحابی تھے, بڑے غریب صحابی تھے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں گویا نبی پاک کے در پر ڈیرا ڈالے رہتے تھے. اصحاب صفہ بڑے مبارک صحابہ ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے آج ہم نے یہ جو ہم نے سنا ہے کہ نام کا آغاز کیا ہے, یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے. اللہ کریم اصحاب صفہ پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو اصحاب صفہ کا وہ مقام جو مسجد نبوی شریف میں ہے وہ دیکھنا نصیب فرمائے. جواب درست ہے. جناب وہ کون سے صحابی تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لاتے؟ اللہ اللہ, مسجد نبوی کی تعمیر ہے اور صحابہ اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں, کیا منظر ہوگا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. تیاری مضبوط لگتی ہے جناب. تیسرا سوال ہے گجرات والوں سے. خلفائے اربعہ کے بعد صحابہ میں کون افضل ہے؟ خلفائے راشدین بھی نے کہا جاتا ہے, ان کے بعد صحابہ میں کون افضل ہے؟ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اور اصحاب حضرت اصحاب بدر و حنین اور اصحاب بدر و احد و حنین, بدر و احد, اور پھر اصحاب بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہ. جی خلفائے راشدین کے بعد یہ ذرا ترتیب بڑی خوبصورت ہے, یاد ہونی چاہیے. خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ, پھر حضرات حسنین کریمین, اصحاب بدر, پھر احد, اصحاب بیت رضوان. یہ ان کی افضلیت ہے, یہ ترتیب ہے, اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. سبحان اللہ, جواب درست ہے. اچھا خلفائے راشدین کی بات چلی ہے تو ان کی جو افضلیت ہے اس کی ترتیب بھی بیان کریں. خلفائے راشدین میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد انہی حضرات کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا, انہی حضرات کو یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور یہ خلفائے راشدین بھی. یاد رہے کہ یہ
इनकी जो खिलाफत है ये फजीलत की तरतीब पर है, यानी जो इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक अफजल आला है वो पहले खिलाफत पाता गया, ना कि अफजलियत बरतरतीब खिलाफत है। यानी जैसी इनकी अफजलियत अल्लाह की बारगाह में थी वैसे उनको ये खिलाफत का मर्तबा मिलता गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फिर सैयदना उमर फारूक, फिर हज़रत उस्मान गनी और फिर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब वो शेर याद आ गया, हमारे इमाम साहब अगर वो शेर सुना दें कि एक ही शेर में शायर ने इन चारों असहाब का क्या खूबसूरत तस्करा किया है। जिस वक्त खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। जिस वक्त ते खिदमत में उनकी, जिस वक्त ते खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। मैं एक और शेर भी सुनना चाह रहा हूं। एक समत उमर सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। महताब का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत का एक शेर है और आप बहुत अच्छा वो कलाम पढ़ते हैं। इशारा दे देता हूं, आला हजरत ने अपने एक ही शेर में इन चारों का तस्करा किया, नाम भी नहीं लिया और चारों की बात भी बड़ी प्यारी की। तोहफा बता दें, शायद जल्दी याद आ जाए। बराबर में ही तोहफा पड़ा है, जो पसंद करें उठा लें। चलें, देखें हाथ उठने शुरू हो गए हैं। कलाम बता देता हूं, चलें। जर्रे झड़कर, शेर में पता है, करीब पहुंच गए हैं। ज़हन में नहीं आ रहा। सिद्ध को, हाँ, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। चार शोशोरे हैं इन चारों के, चार सुशोहरे हैं इन चारों के, चार सुशोहरे हैं इन चारों के। क्या खूबसूरत बात की है। सिद्ध को अदलो करमो हिम्मत में। सिद्क सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, अदल मौला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की अदालत है, करम हज़रत उस्मान गनी की सखावत है और हिम्मत मौला अली की शुजाअत है। चार सू शोहरे हैं, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। अल्लाह ताला तुरबत खुलफाए राशिदीन पर अपनी करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए। और बड़ी खूबसूरत तरतीब हमारे मदनी चैनल की मजलिस ने, ज़ैनी आजमाइश की मजलिस ने दी है कि चौथा सवाल था और चौथे सवाल पर ही खुलफाए राशिदीन की बात की है। क्या बात है। अब पंजतन पाक की निस्बत से पांचवा सवाल है और वो सवाल है गुजरात वालों से, अकीका के क्या माने हैं। जी, दोनों के तीन तीन सवाल हुए थे जी। चौथा सवाल अब है। अकीका के मानी है काटना, यानी ज़बह करना या काटना। अकीका के ऊपर जानवर जो है उसको ज़बह किया जाता है, इसलिए इसको अकीका कहा जाता है। अकीका के लफ्जी माना काटना, अलग करना है और उसके शरई माना यह है कि बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको अकीका कहते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है। क्या अकीका ना करने वाला गुनहगार होता है? अकीका करना सुन्नत मुस्तहब्बा है, अकीका ना करने वाला गुनाहगार नहीं होता। अगर इतनी इस्तिताअत नहीं है कि अकीका कर सके तो उस पर अकीका नहीं। जी जनाब, अकीका फर्ज या वाजिब नहीं है, सिर्फ सुन्नत मुस्तहब्बा है, तर्क गुनाह नहीं। जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है। आप सब अपने माइक ऑन रखिएगा ताकि बार बार आपको ऑन ऑफ ना करना पड़े। अब पांचवा सवाल है, अमामा शरीफ बांधने के आदाब क्या हैं? गुजरात के तीनों इस्लामी भाइयों के सरों पर अमामा है, जरा कुछ आदाब भी बयान कर दीजिए।
इमामा शरीफ बांधने के लिए सबसे पहले जगह का पाक होना ज़रूरी है। किबला रुख खड़े होकर दाएं तरफ से शुरू करें कि सरकार सलाम दाएं तरफ से जो भी काम करते आप सरकार सलाम दाएं तरफ से हर काम को शुरू करना पसंद फरमाते। जी, इमामे को पाकी की हालत में, यानी खुद भी पाक हो, पाकी की हालत में किबला रू खड़े होकर बांधे। मुनासिब यह है कि अमामा बांधने में पहला पेच दाहिनी जानिब से ले जाए, कि यह हदीस में है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम हर काम में दाईं तरफ से इब्तिदा को पसंद फरमाते थे। यहां तक कि मेरे आका अपना मुबारक जूता पहनते वक्त भी पहले अपना मुबारक पैर दाएं जूते में दाखिल फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आम तौर पर अमामा बांधे तो क्या दुआ पढ़े? अमामा बांधने की भी दुआ है जनाब, याद कर लीजिए। इसके बारे में सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कपड़े पहनो तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। तो क्या होगा जब ये दुआ पढ़ेगा? तो क्या होगा? इसकी फजीलत भी है ना हदीस में। उसके पहले के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी प्यारी दुआ है। जब भी कपड़ा पहने तो ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सुभान अल्लाह, दुआएं भी सीखने को मिलती जा रही हैं। और कितनी प्यारी दुआ है कि लिबास पहने, अमामा पहने और दुआ पढ़ें और गुनाह मुआफ हो जाएं। क्या बात है मदीने की। चलें जनाब, 5-5 सवाल हो गए। यहां भी इस्लामी भाई आए हैं, इनसे भी कोई सवाल किया जाए। तैयार हैं? कौन जवाब देगा? चलें पहले तो यूसुफ भाई से पूछते हैं क्या तोहफा देंगे आज ज़ैनी आजमाइश सीजन 8 का पहला तोहफा क्या होगा? दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की बहुत ही खूबसूरत मतबूआ किताब, और ये ऐसे मौजू पर है अब्दुल हबीब भाई किताब कि ऐसे मौजू पर इतनी ज़ख़ीम किताब नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने 500 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बहुत ही खूबसूरत किताब हमें दी, गीबत की तबाहकारियाँ। सुभान अल्लाह। 230 रुपये हदिया है इस किताब का, और मदनी चैनल के नाजरीन इसे मकतबतुल मदीना से हासिल भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलें, बड़ा आसान था सवाल, पहला है ना सिलसिला, तो आसान सवाल कर लेते। वो कौन से 2 शहर हैं जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा? कौन से 2? अपनी जगह पर बैठेंगे, हाथ उठाएंगे, जबान से कुछ नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह वो माइक लेकर खुद आप में से किसी के पास पहुंचेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का मुकरमा और दूसरा मदीना मुनव्वरा। मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब कितने दिनों में पढ़ लेंगे? ये भी कोई नियत हो जाए ना किताब की। माशाल्लाह, तस्बीह भी मदीने की दी है आपने, तो 313 दुरूद की भी नियत हो जाए। क्या बात है, रोजाना इंशाअल्लाह हैं? असर की नमाज के बाद पढ़ने की नियत, असर की नमाज के बाद रोजाना पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और 313 बार दुरूद पाक भी। क्या बात है मदीने की, सुभान अल्लाह। अब एक और सवाल कर लेते हैं यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से। हदीस पाक के मुताबिक जो 40 कदम जनाजा ले चले उसे क्या अजर मिलता है? क्या तोहफा देंगे जनाब? देखते हैं, और माइक किसके पास जाता है? बहुत ही खूबसूरत खजूर मदीना, हाँ, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मुक़द्दस पानी का मजमुआ और खजूर मदीना। 40 कदम जनाजा ले चले उसे क्या अजर मिलता है? उसके 40 गुनाह माफ किए जाते हैं। बेटा जरा करीब करेंगे। उसके 40 गुनाह माफ किए जाते हैं। 40 कौन से गुनाह? कबीरा गुनाह। जी जनाब, 40 कदम जनाजा ले चले उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे। हदीस पाक में आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और ये कितनी बड़ी हौसला अफजा बात है मदनी चैनल के नाजरीन के 40 कबीरा गुनाह। लोग जनाजे में जाते हैं, कांधा नहीं देते। हमें जनाजे को कांधा देना चाहिए, ही हमारा ही फायदा है। एक और बड़ा प्यारा काम है, थोड़ी देर बाद ये सवाल करता हूं, थोड़ा तैयारी कर लें। एक और काम भी है, बहुत कम मैंने ऐसे आमाल पढ़े हैं जिसमें बराह रास्त कबीरा गुनाह मुआफ होने की नवीद सुनाई गई हो, बिशारत सुनाई गई हो। एक काम है, चले अभी पूछ लेता हूं। एक और तोहफा आबिद बापू लाएं जनाब। वो कौन सा काम है? इशारा दे देता हूं। हज पर वो काम किया जाता है जो हर काम पर 40 हर काम पर एक कबीरा गुनाह माफ। वो कौन सा काम है जनाब? हाथ उठाएं। अब देखिए कितने सारे हाथ उठते थे, अब हाथ नहीं उठ रहे। अरफा में क़याम करने पर जो नहीं, वो तो सारे इंशाअल्लाह गुनाह माफ हो जाएंगे। वो ऐसा अमल है जो अमल हज के लिए जरूरी है और कई बार वो करना पड़ता है, मगर हर अमल पर कबीरा गुनाह माफ। एक कबीरा गुनाह माफ का वादा है थोड़ा मुश्किल। अल्लाह करे आप जल्दी जल्दी हज पर जाएं।
लेकिन हज तरबियती इज्तिमा में जिन्होंने शिरकत की उन्हें याद होगा। जी, लगता है मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। जब तवाफ करते हैं तो हर कदम पर एक नहीं, ये फजीलत मैंने नहीं पढ़ी जी, जो मेरे जहन में जो बड़ी मशहूर भी है और बड़ी प्यारी। आखिरी जवाब ले लें, फिर उसके बाद मैं ही बता देता हूं। जी, कंकरी मारने। अल्लाह, जमरात को जब रमी की जाती है, कंकरी मारी जाती है, हर कंकरी मारने पर एक कबीरा गुनाह माफ होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है हमारे मदनी मुन्ने को जो है तस्बीह मदीना, अरे वाह, खजूर मदीना, अरे वाह, सुभान अल्लाह। उर्दू पढ़ना आती है? चलें जी, आपको किताब माशाअल्लाह, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ये इनसे ताला पूछे कहां पढ़ा इन्होंने, कैसे सीखा ये? जी, अच्छा, ये कुछ बैरूनी इमदाद भी लग रही है। चलें जनाब, अल्लाह करीम आपको आपके वालिदैन के साथ हज की सआदत नसीब करे। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा जवाब दिया है जनाब। सल्लु अलल हबीब। हाँ, बहुत सारे तोहफे हमारे मदनी मुन्ने ने ले लिए हैं और अब शुरू करते हैं ज़हनी आजमाइश इल्म नूर है का 5 सवाल। आधा सेगमेंट हो गया है और अब छठे सवाल की तरफ चलेंगे। जनाब, सवाल है हमारे गुजरात के इस्लामी भाइयों से, वो कौन सी सूरत है कि जिसमें वुजू करने वाले को बहुक्म हदीस दुगना सवाब मिलेगा, डबल सवाब? वो कौन सा तरीका है जिसमें वुजू करने वाले को मिलता है? जब कि वज़ू करना मुश्किल हो, जैसा कि सर्दी के दिनों में ठंडे पानी से वज़ू करना, अगर इस हालत में वो वज़ू करेगा तो उसे दुगना सवाब दिया जाएगा। कोई और सूरत भी है इसके अलावा? ये आपके जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन प्लस इसमें कुछ और भी कर दें अगर है तो, आपको मालूम हो। सर्दी में, थकन में, नज़ले, जुकाम, दर्द सर, बीमारी में जब वज़ू करना दुश्वार होता है, मगर फिर भी कोई ऐसे वक्त में वज़ू करे तो उसके लिए बहुक्म हदीस डबल यानी दुगना सवाब होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मजहब है हमारा। थोड़ी सी मुश्किल उठाएं तो सवाब भी बढ़ जाता है। अफदलुल अमाल अहमजुहा, जब भी तो कहा जाता है अफजल अमल वो है जो मुश्किल हो। बाज़ औक़ात सर्दी में लोग नमाज छोड़ देते हैं, दर्द सर हो तो इबादत छोड़ देते हैं। अरे इस मौके पर तो ज्यादा सवाब है। मुश्किल और मुशक्कत उठाएंगे तो नेकियां भी ज्यादा हैं, तो फिर क्यों ना ज्यादा नेकियां उठाई जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है गुजरात वालों ने। बाबुल मदीना वालों की बारी है। क़यामत के दिन आमाल नामा लोगों को कैसे दिया जाएगा? क़यामत के दिन हर शख्स को नामा अमाल दिया जाएगा। मोमिन को उसके सीधे हाथ में और जो बदकार होगा उसको उल्टे हाथ में, और कुफ्फार को सीना तोड़कर उल्टा हाथ पीछे ले जाकर नामा अमाल दिया जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। नेकूकार के दाहिने हाथ में यानी दाएं हाथ में, बदों के बाएं हाथ में, और काफिर को सीना तोड़कर उसका बायां हाथ उसकी पसे पुष्ट निकालकर पीठ के पीछे दिया जाएगा। हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा नामा अमाल हमें दाएं हाथ में हता फरमा और आसानी के साथ हमारा हिसाब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा, आमीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताएं गुजरात वाले, बंधा हुआ इमामा शरीफ खोलकर फिर से बांधना हो तो कैसे खोला जाए? अगर अब इमामा खोलने की बारी है तो कैसे खोला जाए? जब दोबारा इमामा बांधने का इरादा करे तो जिसी तरह बांधा था उसी तरह एक एक पेच करके खोले, एक ही दफा में जमीन पर ना डाल दे। जी जनाब, मुस्तहब यह है कि जिस तरह लपेटा था उसी तरह एक एक पेच करके खोला जाए। बाद इस्लाम में फौरन उतार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मुस्तहब अमल है कि एक एक पेच करके खोला जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमामा शरीफ की बात चली है तो बताइए अमामा की बंदिश कैसी होनी चाहिए? वो लुक्स लाइक कैसा होना चाहिए? बांधना उसे कैसा चाहिए? इमामा की बंदिश गुंबद नुमा होनी चाहिए। और इस पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी अलैहि रहमा वो भी फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमामा बांधते तो गोल पट्टी में बांधते और गुंबद नुमा होता। सुभान अल्लाह। आला हजरत अलैहि रहमत रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इमामा जो है ये गुंबद नुमा बांधना चाहिए जिस तरह फकीर बांधते हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत भी इसी तरह बांधा करते। इमामा जो है वो गुंबद की मानिंद होना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब देखें जो इमामा नहीं पहनते वो सोचें कि ये इमामा तो गुंबद खजरा की निस्बत भी तो, और दावत इस्लामी वालों को तो इमामा भी सब्ज रंग का है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, सवाल ये है गुजरात वालों से, उम्मुस सिबियान किसे कहते हैं?
اب تک کوئی غلطی کسی ٹیم نے نہیں کی ہے. 7 سوال سارے صحیح جواب. مصیبیان ایک بیماری ہے جو کہ بچوں میں ہوتی ہے، اسے مرگی بھی کہا جاتا ہے. یہ مرگی تو ہے لیکن یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرا بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں. اس سوال کے جواب کو کیا پورا مانا جائے گا کہ نہیں یہ مجلس بتائے گی. انہوں نے کہا کہ بچوں کو ہوتی ہے اور مرگی ہوتی ہے. جی یہ آپ کا آدھا جواب ہے، اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. جناب باری ہے باب المدینہ والوں کی. بچے کے کان میں اذان دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہنی چاہیے. جی دوبارہ ذرا جواب دیجیے گا. بچے کے کان میں اذان دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہنی چاہیے. سیدھے کان میں 4 بار اذان، بائیں کان میں 3 بار اقامت دی جائے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے گجرات کے اسلامی بھائی، نرمی اور بردباری کی کیا فضیلت ہے؟ نرمی اور بردباری کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے کے حساب میں بھی نرمی فرمائے گا. بالکل جواب ہو سکتا ہے آپ کا درست ہو، لیکن آپ کو ایک نصاب دیا گیا ہوگا اور اس میں ایک حدیث اس سوال کے جواب میں تھی. وہ حدیث آپ نے سنانی ہے. اللہ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں دیتا. یعنی نرمی کرنے والے کو بہت کچھ ملتا ہے، سختی کرنے والے کو وہ نہیں ملتا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نیت کر لیں انشاءاللہ نرم ہو جائیں گے، بردبار ہو جائیں گے. شاعر لکھتے ہیں نا، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آئیے سوال ہے اب ہمارے باب المدینہ والوں سے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث سنائیے. غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو طاقتور ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے. یہ حدیث نہیں ہے. آپ کو وقت آپ کا بھی ختم ہو گیا ہے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تم لوگوں پر غصہ نہ کیا کرو. گویا اگر غصہ نہ کیا کہ جائے تو اللہ کے غضب سے وہ بندہ بچ سکتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ بتائیے. میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تیرے لیے جنت ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے غصے کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نرمی، بردباری اور اخلاق کی عادت اپنائیے. غلطی ہو گئی ہے جناب، دونوں نے ایک ساتھ ہی غلطی کی ہے، چلنا بھی لگتا ہے ساتھ ہی ہے. جی جناب ابھی باری آنی ہے. 10واں سوال، کن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی؟ گجرات کے اسلامی بھائیوں نے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن آج بتائیں کن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی؟ مسافر کی دعا، مصیبت زدہ کی دعا اور والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا یہ رد نہیں ہوتی. ایک اور روایت بھی آپ کو جی وقت اور روزہ دار کی دعا جب وہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے.
روزادار یہاں تک کہ افطار کرے، مریض یہاں تک کہ تندرست ہو جائے اور حاجی یہاں تک کہ واپس آ جائے، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ 3 میں سے 1 چونکہ آپ نے درست دیا تو آپ کو 1 بھی نمبر ہم نہیں دے سکیں گے۔ کوشش کریں، بہت سارے سوالات کے جوابات اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو نصاب دیا گیا ہے آپ اسی کے اندر سے جواب دیں گے تو وہ درست مانا جائے گا۔ مجھے کہا گیا کہ نرمی کے حوالے سے، غصے کے وقت قابو میں رکھنے کے حوالے سے، یہ والی روایت مجھے سنانی ہے، نرمی اور بردباری والی۔ جی، نرمی اور بردباری والی جو حدیث ہے اس میں مجھے کچھ ٹائپنگ مسٹیک لگتا ہے، میں انشاءاللہ ہماری مجلس کو بھجواتا ہوں، اس کو چیک کر لیں، پھر اس کے بعد میں اس کو دوبارہ پڑھ لوں۔ جی، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو نرمی کی اس قدر فضیلت ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سارے اسلام میں نرمی اپنائیں گے۔ آخری سوال ہے باب المدینہ والوں سے، آگے نکلنے کا موقع ہے، اگر صحیح جواب دیں گے۔ خوف خدا کا کیا مطلب ہے؟ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی سزاؤں اور خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی سزاؤں اور عذابات وغیرہ میں دل جو ہے وہ گھبرا جائے۔ جی، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، کچھ تو آپ نے درست جواب دیا ہے کہ خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی اور اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی خوف خدا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ نمبر آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجلس بتائے گی۔ 1 نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے جناب۔ اسکور بورڈ کی طرف جانا ہے، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے علم نور ہے کا، اور اب ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ کی جانب، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی، 17 نمبر ہیں کراچی مکی کے اور 15 نمبر ہیں گجرات کے اسلامی بھائیوں کے۔ 2 نمبر کا فرق ہو گیا ہے، لیکن ابھی مقابلہ بہت آگے باقی ہے۔ چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی، پانچ اشعار پوچھے جائیں گے آپ سے۔ شعر کا پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے جو آپ نے دوسرا پورا کرنا ہوگا، دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے جس میں پہلا آپ نے پورا کرنا ہوگا۔ اپنے مائک کے تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے، جن کی چیئر دور ہے تھوڑا قریب ہو جائیں اور تھوڑا سا بلند آواز سے بات کریں گے۔ مائک آپ سب کے آن ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے آن نہیں کرنے، مائک آن ہے۔ تو انشاءاللہ عشق کے بول جو اشعار ہیں اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کریں گے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے۔ جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں، پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے۔ جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا وقت آپ کا جا رہا ہے۔ اللہ، بڑے نادان ہے وہ جو جی شعر تو مکمل نہیں کر سکے۔ چلیں یہاں کوئی ہے جو سنائے؟ یوسف بھائی دیکھیں کون سنا رہے ہیں۔ غلط جواب دینے والوں کے مدنی قافلہ مجلس بھی ایکٹیو ہونی چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ان کو مدنی گرفتار ہو جائے نا 3 دن کے لیے۔ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں یہاں پر۔ جی، سن لو نقصان نہیں ہوتا بالآخر ان کو جو آپ کو بھی 3 دن مدنی قافلے میں جانے سے نقصان نہیں ہوگا۔ مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، ہاں بالکل مدنی قافلے میں روانہ کر دیں ان کو۔ چلیں جناب۔ بالیقین ایسے مسلمان ہیں بے حد ناداں جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں۔ جی، بالیقین ایسے مسلمان ہیں بے حد ناداں جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب نیکی کی دعوت انہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب آپ کی باری ہے۔ دوسرا مصرع، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ آئے ہائے، وہ کون ہے بھائی؟ جی، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ آپ نے شعر یا تو خود ابھی ہاتھوں ہاتھ بنایا ہے
لیکن یہ جواب غلط ہے. اس کے 5 اشعار ہیں جس کا دوسرا مصرع ایسا ہی ہے. اچھا اب اس کو کیسے مینج کریں گے جناب؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے 5 اشعار ہیں. چلیں آپ کے اس جواب کو ہم روک لیتے ہیں. ہاں آپ کو 5 یاد ہیں؟ چلیں پھر 5 سنا دیں، پھر یہ آ ہی جائے گا پھر تو. چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، جھلملاتے ہوئے تاروں کی بھی قسمت ہے خوب، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی کے پرنور مینارے ہر دم گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، جھوم کر آتے ہیں بارش لیے بادل جب بھی گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، بامقدر ہے مدینے کے کبوتر بے شک کہ گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. اللہ وہ دن لائے آپ کے بارے میں کہ آپ بھی گنبد خضرا کے نظارے کریں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک کی جگہ 5 شعر سنا دیے ہیں اور ہماری مجلس کو بھی ایک یوں سمجھیے ٹاسک مل گیا ہے کہ ایسے اشعار لکھتے وقت تھوڑا ہمیں احتیاط کرنی ہوگی جو 1 سے زائد ہوں. سوال میرے پاس 5 ہی ملیں گے یا پھر 2؟ نمبر تو ان کو 2 ہی دیں گے انشاءاللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے فیضان ابو ہریرہ کی طرف بڑھ رہے ہوں. ماشاءاللہ. جھلملاتے ہوئے تاروں کی بھی قسمت ہے خوب،